Bismillahirrahmanirrahim. Dear viewers, welcome to English Echoes with Suleiman Razi. In today's video, we are going to discuss about some of the current uses of slang. Slang is the use of spoken language. In this style of speaking, some informal and colloquial type of words and phrases are used that become a particular epitome of a region, community, area, etc. So this is the use of particular words which are related to a community, to a region, and that become a genre of that particular area. In the past, there has also been use of slang words, but recently many of the slangs have become a characteristic of a particular type of area, community, region, etc. तो एक ख़ास इलाके में कुछ ख़ास लफ्ज़ बोले जाते हैं जो एक ज़ुबान का हिस्सा बन जाते हैं, वक्तन फ़वक्तन उनमें चेंजेस आती रहती हैं। तो आज इंग्लिश ज़ुबान के कुछ ऐसे स्लैंग्स आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो रूटीन में आपको सुनने में मिलते हैं। एक्चुअली दीज स्लैंग्स आर यूज्ड इन स्पोकन लैंग्वेज एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी सी दैट दे हैव नो इम्पोर्टेंस इन रिटन लैंग्वेज। तो लिखी हुई तहरीरों में इनका इस्तेमाल बहुत कम मिलता है, ये ज़्यादातर बोलने में ही जो है हमें मिलते हैं। द फर्स्ट slang we commonly listen is the use of the slang word cool. 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 Cool means very, awesome, looking to be great, looking to be flashing, etc. For example, someone says, "You are looking so cool." So the here word cool means awesome, great, etc. Then there is a word that is chill. Chill means peaceful, calm, looking, etc. Uh, for example, if anybody says, "You are looking to be so chill," it means he is referring towards the idea of calling him a peaceful person, a calm looking person. Then there is a slang which we normally hear in routine of the day, drip. 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 Drip means stylish looking. Stylish looking जो बहुत ज़्यादा शानदार, जिसने लिबास वगैरह पहना हो, बड़ा बांका सा, छैल छबीला सा नज़र आने वाला शख्स, उसको आमतौर पे ये कह देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ somebody says, "You are looking to be so drip," it means he is referring to call him looking to be very stylish. तो ऐसे शख्स को ड्रिप बोल देते हैं, ये भी स्लैंग यूज में आता है। उसके बाद है एक और स्लैंग सुनने में मिलता है, बोजी। BOUJEE। इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी बोजी। लुकिंग टू बी सो लग्जूरियस, बहुत ऐशो इशरत वाला शख्स जिसने बड़े अयाशाना अंदाज में जो है ना ऐशो इशरत के साथ लबास ज़ेब तन किया हो और बड़ा शानदार जिसकी लुक नज़र आती हो, उसको बूजी बोलते हैं। सो इफ somebody says, "You are so bougie,"
It means to say that he is looking to be somewhat luxurious. Then there is another slang word, and it is flex. Flex, flex. Flex, one who seems to be boasting of something. You are so flex about your success now. क्या तुम अपनी जो कामयाबी पे बहुत ज़्यादा नाज़ा किए हुए हो, बहुत ज़्यादा शेखी भिगाड़ते हो, तो ऐसे शख्स को फ्लेक्स बोला जाता है. Then there is another slang use, and it is sus. S-U-S, sus. तो किसी तौर पर हम इसको सस्पिशियस की शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं. Razal looks to be so sus today. कि आज तो वो बहुत ज़्यादा सस नज़र आ रहा है. इट मीन्स दैट ही इज लुकिंग टू बी सस्पिशियस, फुल ऑफ सीक्रेट्स, डाउट्स, एटसेट्रा. सस्पिशियस के मीनिंग में इस्तेमाल करते हैं. देन देयर इज अनदर स्लैंग वर्ड. इट इज डब्ल्यू. डब्ल्यू जिसे हम बोलते हैं डब्ल्यू. सो इट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ विन, सक्सेस, एटसेट्रा. हम कह सकते हैं let us enjoy your W today. अब यहाँ पे W से मुराद सक्सेस है, कामयाबी है, जीत है, फतह है. तो इस सेंस में ये स्लैंग यूज फतह और जीत मनाने के जो है पस मंज़र में बोला जाता है. Then there is another slang word which is dank. D-A-N-K, dank. अच्छा, ऊपर स्टार्ट में हमने कुछ लफ्ज बोले थे, ये कूल, चिल, dank. Actually these words have the same meanings. To look to be, awesome, great, calm, peaceful, satisfied. तो इस सेंस में ये लफ्ज इस्तेमाल होते हैं. He is looking to be so chill, calm and dank today. तो ये सारे एक ही मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं. पुरसुकून नजर आना, पुरएतमाद नजर आना. Then there is another slang use which is whip. W-H-I-P, whip. Whip means car, गाड़ी. Where is your whip now? Where is your whip now? Can you lend me your whip today? तो ये गाड़ी के तनाज़र में स्लैंग वर्ड बोला जाता है whip. W-H-I-P, whip. Then there is another slang word which is bling. B-L-I-N-G, bling. Bling means very flashy and awesome jewelry. What a nice bling you are wearing today. कितनी खूबसूरत ज्वेलरी या इस किस्म की जो भी एक्सेसरीज जो मर्द व ख़वातीन हजरात पहनते हैं, ये ब्लिंग वर्ड उनके लिए बोला जाता है. Then the other slang word is dodgy. D-O-D-G-Y, dodgy. Dodgy means suspicious. One who is looking to be suspicious is called dodgy. Your dodgy behavior is very strange for me today. तो मशकूक जो बिहेवियर होता है उसके तनाज़र में ये लफ्ज़ डॉजी बोला जाता है. Then there is another slang word which is dead. D-E-A-D, dead. Dead means a highly amused, highly satisfied person. I'm dead to hear the news of your success. I'm dead to hear the news of your success.
तुम्हारी कामयाबी की खबर सुनकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ। तो ये डेड उस सेंस में बोला जाता है। नेक्स्ट देयर इज another slang word which is bitter, bitter, bitter। तो bitter आमतौर पे ये तलख और कड़वा के सेंस में बोला जाता है, बट यू सी दैट in slang usage bitter means upset। He looks to be bitter today for being late for the office। ऑफिस से देरी होने पर आज वो बड़ा परेशान नजर आ रहा है। तो यहाँ हम bitter slang यूज कर सकते हैं। The next word is vibe। Vibe is used in the backdrop of mood feeling। कोई मूड हो उसका इजहार करने के लिए vibe यूज कर सकते हैं। The music reflects the vibe you are demonstrating। मौसीकी जो चल रही है ये तुम्हारे वाइब, तुम्हारे मूड की जो है ना मजहर है। तो वाइब जो है ना ये मूड या फीलिंग्स के इजहार के लिए यूज करते हैं। The other word is low-key। L-O-W-K-E-Y, low-key। Low-key means very secretly। Low-key secretly, बड़े छुप छुपा के, चोरी छुपे जो है ना जो काम किया जाए उसके लिए लफ्ज लोकी इस्तेमाल करते हैं। आई लोकी लव हर। इसके अगेंस्ट एक लफ्ज यूज होता है जो इसका एंटोनिम है, वो है हाई की। हाई की मीन्स ओपनली, विदाउट एनी सीक्रेट, खुलेआम सरेआम। I highly appreciate your wisdom। I highly appreciate your wisdom। High key means openly। ये लो की का जो है एंटोनिम होता है, उलट होता है, मुतसाद होता है। Then there is a slang use that is thirsty। Thirsty is used as a slang word for the person who is very much excited or desperate to draw the attention of anything। किसी चीज की तवज्जो हासिल करने के लिए जो बहुत बेचैन हो जाता है उसको थर्स्टी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी इज थर्स्टी फॉर हैविंग लाइक्स ऑन हर वीडियोस, ऑन हर यूट्यूब वीडियोस। तो ऐसे शख्स के लिए जो बहुत ज्यादा बेचैन हो दूसरों की तवज्जो खींचने के लिए थर्स्टी लफ्ज बोला जाता है। देन देयर इज अ वर्ड फोमो। फोमो ये आम स्लैंग वर्ड है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आई फील फोमो फॉर बीइंग नेग्लेक्टेड इन द फोटोग्राफी सेशन। मुझे डर है कि जो फोटोग्राफी सेशन है उसमें मुझे मिस कर दिया जाएगा, मुझे भुला दिया जाएगा। फोमो तो उस शख्स के लिए बोला जाता है फियर ऑफ मिसिंग आउट। देन देयर इज अनदर स्लैंग वर्ड पिंग। PING, पिंग बहुत आम लफ्ज बोला जाता है, ये डे टू डे लाइफ में हम सुनते भी हैं। पिंग मीन्स send me a quick message। Ping means send me a quick message। For example, ping me when you get any information about the incident। तो स्लैंग वर्ड्स का यूज रोजमर्रा की बोलचाल में आम होता है।
ये एक ख़ास इलाके, ख़ास माशरे और एक ख़ास ख़ित्ते की खूबी होती है ज़ुबान की। To some extent we can say that slang is the language of tramps, vagabonds, thieves, etc. So a specified region of a community or public related to a specific area makes a use of this language. So it is a colloquial language. So in written form, there is not much space for the use of slang language. So it is used in spoken language. तो हर ज़ुबान में कुछ ना कुछ स्लैंग्स क्रिएट कर लिए जाते हैं। वक्त के साथ साथ ये बदलते रहते हैं, पुरानों की जगह पे नए स्लैंग्स आ जाते हैं। तो ये ज़ुबान की खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं, उसको एक नया फ्लेवर देते हैं। तो हर ज़ुबान में ऐसा स्लैंग्स वर्ड्स का यूज़ होता है। तो ये थी आज की वीडियो स्लैंग्स के मतलब। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।